عمران خان کے 4 سالہ دور حکومت میں جو مہنگائی ہوئی ہے اس وقت آپ جسٹیفائی کرتے تھے کہ یہ مہنگائی عالمی سطح پر ہو رہی ہے یا عالمی منڈی میں جو پیٹرول ہے اس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، تو اب اس حکومت میں اگر ہوئی ہے تو پھر آپ مخالفت میں کیوں آ گئے؟ جب آپ IMF کے معاہدے پر عمل درآمد نہیں کریں گے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ سبسڈی ختم کریں گے، تو آپ کو آئندہ کی قسط ہی نہیں مل رہی، تو کیا آپ کے پاس ملک کی معیشت اس قابل ہو چکی تھی کہ آپ کا IMF کا انحصار ختم ہو گیا؟ تو جو ہوا امریکہ کی غلامی پہ رضامند، تو جو ہوا امریکہ کی غلامی پہ رضامند، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، امریکہ سے نہیں۔ یہ جب ایٹمی دھماکے ہوئے تھے تو اس وقت بھی نواز شریف پر امریکہ کا پریشر تھا اور نواز شریف نے اس کے باوجود اس پر ایٹمی دھماکے کر کے بتایا کہ حقیقی جب حکومت تھی نواز شریف کی تو یہی وہ لوگ تھے جو ہمیشہ جو ہمارا ادارہ ہے پاک فوج، اس کے حق میں یہ کمپین چلایا کرتے تھے اور ریاستی جو بیانیہ ہوتا تھا اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، لیکن اب ایسی کیا وجہ بن گئی ہے کہ حکومت کے بدلنے کے ساتھ ہی یہ پاک فوج کے خلاف ہو چکے ہیں اور ریاستی بیانی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ظہر اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حرف اظہار۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں لبرٹی چوک لاہور میں، جہاں تحریک انصاف کے کارکنان اپنے لیڈر عمران خان کی کال پر مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ 4 سال بعد آخر کیسے ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ مہنگائی واقعی ایک بری چیز ہے اور اس پر عوام پر برا اثر پڑتا ہے۔ جی سر، پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے لیڈر عمران خان نے جو مہنگائی کے خلاف کال دیا اور یہاں پر جتنی لوگ یہاں پر موجود ہیں، آپ اس تعداد کے حوالے سے مطمئن ہیں کہ بڑی تعداد آپ نکال پائے ہیں؟ جی بالکل، الحمدللہ سے ہم مطمئن ہیں۔ یہ تو خالی لبرٹی مارکیٹ میں آپ پورے لاہور میں دیکھیں، پورے پاکستان میں دیکھیں، اس سے بھی ڈبل عوام نکلی ہوئی ہے اور مہنگائی کے خلاف بہت زیادہ عوام نکلی ہے۔ اور یہ حکومت بالکل بھی انٹرنیٹ حکومت ہمیں نامنظور ہے، کیونکہ انہوں نے ایک مہنگائی بہت زیادہ کی ہوئی ہے، اس کے علاوہ یہ امریکہ کے غلام ہے۔ تو خان صاحب کی کال پہ ہم نکلے اور انشاءاللہ آگے بھی جب بھی حکومت پڑے گی، خان صاحب جب بھی کال دیں گے ہم نکلیں گے۔ عمران خان کے 4 سالہ دور حکومت میں جو مہنگائی ہوئی ہے اس وقت آپ جسٹیفائی کرتے تھے کہ یہ مہنگائی عالمی سطح پر ہو رہی ہے یا عالمی منڈی میں جو پیٹرول ہے اس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، تو اب اس حکومت میں اگر ہوئی ہے تو پھر آپ مخالفت میں کیوں آ گئے؟ دیکھیں نا، عمران خان کے دور میں 4 سالوں میں پہلی تو بات یہ ہے کہ 3 سال تو آپ کووڈ کے نکال لیں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود ہمارے ملک میں پاکستان کو کافی اچھی طریقے سے انہوں نے سنبھالا ہے اور ہمیں کافی سپورٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ جو مہنگائی ہوئی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے عالمی سطح پہ مہنگائی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ حکومت جو تھی، انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک چلائی تھی۔ ان کا کیا مقصد تھا؟ ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم نے مہنگائی ختم کرنی ہے، جی 1 روپیہ بھی اگر پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو وہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، 1 مہینے کے اندر انہوں نے کم از کم 100 روپے 60 روپے انہوں نے قیمت بڑھائی ہے۔ تو یہ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ آپ بارودی سرنگیں بچھا کر گئے تھے، IMF کے ساتھ آپ نے جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کے عمل درآمد کی وجہ سے یہ مہنگائی ہو رہی ہے۔ آپ کی پالیسیوں کا جو نتیجہ ہے اس کی وجہ سے یہ سارے نتائج جو ہیں اس حکومت کو بھگتنا پڑ گیا۔ نہیں، دیکھیں نا، عمران خان نے کوئی مہنگائی نہیں کی، ان کے دور میں جو مہنگائی تھی وہ عالمی سطح پہ مہنگائی تھی، وہ اتنی مہنگائی نہیں تھی، انہوں نے جو قیمتیں بڑھائی ہیں وہ بہت کم تھی۔ اب یہ دیکھیں نا، 1-2 مہینے کے اندر انہوں نے ڈبل ٹرپل قیمتیں بڑھا دی ہیں اور مزید بڑھ رہی ہیں۔ آگے جولائی میں آپ دیکھیے گا قیمتیں کدھر جا رہی ہیں۔ پلس ان کا جو عدم اعتماد کی تحریک تھی اس کا مقصد کیا تھا؟ مہنگائی ختم کرنے کے لیے یہ آئے تھے، انہوں نے کوئی مہنگائی ختم نہیں کی۔ اور پلس یہ دیکھیں نا، روس سے انہوں نے آئل نہیں لے رہے، معاہدہ نہیں کر رہے، خان صاحب تو روس کے ساتھ بھی معاہدہ کر رہے تھے۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ آپ کی جو پالیسیاں تھیں اس کا خمیازہ اس حکومت کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آپ کی جو IMF کے ساتھ کیا گیا معاہدہ تھا، اس کے جو اثرات ہیں اس معاہدے کو پر عمل درآمد کرنے کی وجہ سے آپ نے جو بارودی سرنگیں بچھائی تھی اس کا نزلہ سارا اس حکومت کو۔ میں اس بات کو متفق نہیں ہوں، کیونکہ یہ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں جی اس کو پہلے سے پتا تھا کہ میری حکومت نے چلے جانا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ رات کے 12 بجے تک کیا اس کو پتا تھا کہ میں نے چلے جانا ہے؟ رات کے 12 بجے تک وہ ڈٹا ہوا تھا۔ عمران خان تو کہتے
कहते हैं कि उन्होंने 1 साल पहले ये हो चुका था कि उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं और पूरी दुनिया को इस बात पर बखूबी इल्म है कि अक्टूबर के में जो वाक़यात हुए रियासती सतह पर जो ISI के चीफ को हटाने के मामले में इस इख्तलाफ की वजह से उनको हटाया गया। तो आप अपना बयानिया बार बार क्यों बदल रहे हैं? मैं ये नहीं समझता कि ये DG ISI के हवाले से ये कोई मूवमेंट चली है। मैं ये समझता हूँ कि ये प्योरली ये जो नून लीग बल्कि ये जो 13-14 जमातें हैं इनके ऊपर केसेस थे, इन्होंने बड़े अरसे से ये ट्राई कर रहे थे और ये वाकई सही बात है कि ये अरसा दराज से लगे हुए थे ये साजिश करने के लिए, लेकिन उनको सहारा नहीं मिल रहा था। अभी जब उनको सहारा मिला उन्होंने साजिश की, उन्होंने बैरून मुल्क जो लोग इसके पीछे हैं, यानी कि मैं खुले दिल से कहता हूँ, खुले आम कहता हूँ कि अमेरिका के जो सफीर हैं और जो कौंसलेट हैं वो यहाँ पे आके बाकायदा अपोजिशन से मुज़ाकरात करते रहे हैं, उनको फीड करते रहे हैं, उनको फाइनेंस करते रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उनको सूट नहीं कर रहे थे। हम जो हमारे लीडर ने एक इतना बड़ा नारा मार दिया, बल्कि नारा क्या है, एक उनको तड़ी लगा दी कि आपको हमने अड्डे नहीं देने। इसका बहुत ही मशहूर है कि एब्सोल्युटली नॉट, और एब्सोल्युटली नॉट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारा लीडर एक अजीम लीडर है और आज तक या मैं समझता हूँ, देखें हर दौर में लीडर आते हैं। भुट्टो एक ऐसा लीडर था जिसने ये काम किया था, लेकिन भुट्टो की पार्टी तो पार्टी रही नहीं। अब वो पीपल्स पार्टी वो पार्टी नहीं, अब चोरों की पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये नून लीग के साथ मिलकर चोरों से भी बदतर हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे लूट मार करने आए हैं, ये अपने केसेस खत्म करने आए हैं, ये कुछ करने नहीं आए, सिर्फ अपने केसेस खत्म करने आए हैं। ये तो पीछे से किसी ने इनको सहारा दिया हुआ है, तो ये टिक्का खा के चलते जा रहे जिंदाबाद इंशाल्लाह अगली हुकूमत पीटीआई इमरान खान की होगी। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है, क्या आप समझते हैं कि इसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है? अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अब देखें, ये वो एक आजकल जो चला भी हुआ है सोशल मीडिया पे कि अगर 2 माह की दुल्हन हो और वो आप 2 माह में तो बच्चा नहीं हो सकता ना, ये तो 9 मंथ का एक पीरियड होता है जिसको ये साइकिल होता है जो कंप्लीट होता है, तो फिर जाके एक बेबी आता है। तो वो एक मशहूर चीज़ आजकल चल रही है सोशल मीडिया पे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई 2 महीने की एफर्ट नहीं थी, ये आज से 3.5-4 महीने पहले ये चीज़ खत्म नहीं इन्होंने करवा दी थी जमा सारी। बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि इमरान खान की काविशों की वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला गया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि FATF ने जो सिफारिशात मुरतब करके दी, जो डिक्टेशन दी, उनकी पॉलिसी के मुताबिक तरीके क्या ये पाकिस्तान की आज़ादी खुदमुख्तारी के मुताबिक था? बिल्कुल बिल्कुल था, क्योंकि उनमें कोई ऐसी शिक नहीं थी जिसमें कि खुदा ना खास्ता, उसमें तो ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग खत्म करो, पर ऐसी चीज़ें थी जो कि ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे करप्शन के ज़मरे में आती हैं, वो चीज़ें वो खत्म करना चाहते हैं। मुल्क में ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन है ये नहीं होनी चाहिए, वो उसमें उनका एजेंडा था कि ये नहीं होगी तो हम आपको ग्रे लिस्ट करेंगे। तो वो इमरान खान ने उस चीज़ में पूरे उतरे हैं और सब उन्होंने जो 34 नुकात थे, 34 पॉइंट्स थे, उनको पूरे करके दिए। तो इमरान खान का सेहरा तो इमरान खान का सेहरा है, लेकिन बात वही कि भुट्टो ने शुरू किया एटॉमिक बम, डॉक्टर कदीर ने उसको अपने अंजाम पे पहुंचाया और बटन दबाते वक्त नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी वो तो जी मेरा क्रेडिट है जी, वो जी ओ भाई तुम्हारा क्या क्रेडिट है, तुम तो किसी काबिल ही नहीं हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि एटॉमिक जो तजर्बा है होना किधर है। एट स्पॉट एक टाइम पे पूछ रहा था, ये बड़ी मतलब बात मैं आपको बड़े वसूल से कह रहा हूँ, वो मैं मेरी बात सुनने, वो ऑफिसर्स को पूछता था भाई जाना किधर है, बलूचिस्तान में कहाँ जाना है, उसको तो ये भी नहीं पता था कि चागी में ये एटॉमिक जो है ना एक्सपेरिमेंट होगा। ये जब आदमी धमाके हुए थे तो उस वक्त भी नवाज शरीफ पर अमेरिका का प्रेशर था और नवाज शरीफ ने उसके बावजूद उस पर आदमी धमाके करके बताया कि हकीकी उस वक्त भी जो है ना हमारी पाक फौज इंडिया से दबना नहीं चाहती थी, तो
हमारी पाक फौज ने इनको प्रेशराइज किया, कुछ अवाम भी निकल पड़ी कि भाई धमाके क्यों नहीं करते। जो है हमारी पाक फौज अजीम फौज और दुनिया की नंबर 1 फौज मैं समझता हूँ, तो उसने इस बात को चीफ ने कह के और प्रेशराइज करके ये धमाके करवाए थे। मैं अलामा इकबाल के शेर को एडिट कर रही हूँ जो एक्चुअली है। तू जो हुआ अमेरिका की गुलामी पे रजामंद, तू जो हुआ अमेरिका की गुलामी पे रजामंद, मुझको तो गिला तुझसे है अमेरिका से नहीं। सो पीपल डोंट बी स्लेव्स ऑफ अमेरिका। थैंक यू सो मच। आप आज़ादी की बात कर रही हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में IMF के साथ उन्होंने जो मुआहदा किया था, उनकी डिक्टेशन पर मुल्क की पॉलिसी बनाई है, तो उनके जो असरात थे उसकी वजह से आज भी ये मुल्क IMF पर इन्हिसार कर रहा है। हम मुआशी तौर पर अब भी खुद मुख्तार नहीं हो सके हैं, तो इमरान खान ने हमें खुद अमेरिका की गुलामी में धकेला था। इमरान खान ने कब अमेरिका की गुलामी में धकेला है? इमरान खान ने हमारे पाकिस्तानियों को, इस्लाम को हर फोरम पे सपोर्ट किया है। आज तक किसी ने इस्लाम के लिए आवाज़ नहीं उठाई, सिर्फ इमरान खान है जिसने इस्लाम के लिए आवाज़ उठाई है। मैं तो कहूँ कि इमरान खान हमें गुलामी से निजात देना चाहता है। वो कहता है कि हम क्यों एक गुलाम कौम बन के रहे, हमें गुलामी से निजात चाहिए। इमरान खान, वी आर विद यू। जी, मेरे साथ एक PTI के कारकुन मौजूद हैं जिन्होंने ARY के हक में एक पोस्टर उठा रखा है जिसमें उन्होंने अरशद शरीफ, साबिर शाकिर और काशिफ अब्बासी, चौधरी गुलाम हुसैन को बेहतरीन रिपोर्टिंग पर खराज तहसीन पेश किया है। तो उनसे मेरा ये सवाल है कि मीडिया के हवाले से जिस तरह ये लोग जब तरफा रिपोर्टिंग करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये आज़ादाना सहाफ़त है कि वो एक तंजीम की के हक में लॉबिंग करते हैं और ऐसा लगता है तो उनका प्रोपेगेंडा मीडिया सब चला रहे हैं? जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ARY एक वाहिद चैनल है जिसकी रेटिंग भी अगर आप देखें तो तमाम चैनल से ज़्यादा है, और इनके जो एंकर्स हैं इनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन एंकर्स ने बेहतरीन रिपोर्टिंग की है, तमाम हक़ाइक़ से पब्लिक को आगाह किया है, जबकि दूसरे चैनल जियो, समा, जितने भी चैनल्स हैं इन्होंने एक तरफा किस्म की रिपोर्टिंग की और आवाम को मुकम्मल हक़ाइक़ से आगाह करने से गुरेज किया। पहले जब हुकूमत थी नवाज शरीफ की, तो यही वो लोग थे जो हमेशा जो हमारा इदारा है पाक फौज, उसके हक़ में जो कैंपेन चलाया करते थे और रियासती जो बयानिया होता था उसके साथ खड़े होते थे। लेकिन अब ऐसी क्या वजह बन गई है कि हुकूमत के बदलने के साथ ही ये पाक फौज के खिलाफ हो चुके हैं और रियासती बयानी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? दरअसल ये परसेप्शन गलत है। पाक फौज के खिलाफ कोई भी नहीं है, ये फौज हमारी है। इस फौज से हम मोहब्बत करते हैं, हम इस फौज से रोमांस करते हैं। अगर किसी वजह से पाक फौज के या न्यूट्रल्स के किसी आला अहदेदार ने अगर कोई मामला किया है तो उसने अपने हद तक किया होगा, लेकिन हम अपनी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, हम रोमांस करते हैं अपनी फ़ौज से, और हम उनको बिल्कुल भी गिरने नहीं देंगे। हमारे लीडर मोहतरम इमरान खान साहब का भी यही कहना है, उन्होंने भी आज तक पाक फौज को कभी बुरा नहीं कहा, ना ही हमारी फौज बुरी है, ना ही हमारे लीडर ने उसे बुरा कहा है और ना ही हम कभी भी उसे बुरा कहेंगे। आईन और कानून के तहत जो रियासती इदारों का किरदार है उसके हवाले से तो उन्हें न्यूट्रल ही रहना चाहिए, लेकिन आप क्यों उनको बार बार कहते हैं कि आप मुदाखलत करें और आप आईन और कानून के में जो उनका ये जो इख्तियारात है उससे तजावुज़ करेंगे? मुदाखलत करने के लिए नहीं कहते हैं, वो ये कहते हैं कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है। न्यूट्रल हर एक आदमी को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, उसे किसी एक तरफ होना चाहिए। और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं इसमें आप जानते हैं कि अदलिया का भी आपने मामला देखा कि रात को जब दिल चाहा 12 बजे खोल दी, अदालतें खोल दी, और जब जी चाहा जो मामला उनके ज़ाती उसमें हैं वो किए। लेकिन
खान साहब ये कहते हैं कि जो हक सच की बात है वो करें, और अगर न्यूट्रल्स अगर दरमियान में नहीं आएंगे तो कौन आएगा, कौन मामलात को ठीक करेगा, कैसे ठीक होंगे ये मामलात। ये तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट तो आपके सामने पिछले 3-3.5 साल की गवर्नमेंट जो PTI की थी, उसने महंगाई की फीसद महंगाई की शरह 11% थी। अब जबकि महंगाई की शरह जो है 28% हो चुकी है। क्या इससे कोई इख्तलाफ कर सकता है? अब आप देखें कि 150 रुपये से पेट्रोल जो है वो पहुंच गया 235 पे, घी 250 से हो गया 650 पे। इसी तरह तमाम जितने भी मामलात हैं वो हद से बाहर हो चुके हैं। हमारे जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनका यानी कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम आज अगर निकले हैं तो ये एक वाहिद ARY ही एक ऐसा चैनल है जिससे उम्मीद की जा सकती है कि वो हमारी आवाज़ पैमाने वाला तक पहुंचाएंगे, न्यूट्रल तक पहुंचाएंगे। मैं इसलिए इस ARY को लेके निकला हूं कि ये सच्ची और अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। मैं इनके तमाम वर्कर्स को, तमाम बैंकर्स को, इनके मालिकान को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जो इस जबर के जुल्म के दौर में जो बेहतरीन रिपोर्टिंग कर रहे हैं। खान साहब भी पूरी दुनिया में जाते थे और कहते थे कि मैं पैकेज लेकर के आया हूँ। इमदाद पर तो वो भी इन्हिसार करते रहे हैं, तो अब ये भी कर रहे हैं, तो फर्क तो कोई ना आया। 4 साल के बाद हम अपने कदमों पर क्यों नहीं खड़े? सर, जिस टाइम के ऊपर इमरान खान आया था उस टाइम उसको इमदाद की ज़रूरत थी। रीसेंट मुझे आप बताएं कि पिछले 1.5 साल के अंदर इमरान खान ने किसकी आगे हाथ मिलाया, किसकी आगे उसने हाथ किया? उसने कोरोना से भी आपको बाहर निकाला, उसने आपको एक इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर भी आपको बचा के रखा। प्रॉब्लम हो रही है ये लोग बैठ के हुकूमत वाले शहबाज शरीफ हो रहा है कि ये इंटरनेशनल रिलेशन की वजह से मौजूदा हुकूमत की जो बदतरीन कारकर्दगी है, क्या तरीके इंसान अब इस काबिल हो गई है कि अब अपनी कारकर्दगी का मुआवजा कार्य कीमतों के हवाले से कि हमने कौम को रिलीफ किया हुआ था और इन्होंने आकर के तबाही पेश की है, तो क्या इन्होंने आपको अवामी इशू की बात करने के काबिल नहीं बना दिया? सर, अवामी इशू तो ये है, बच्चे को लग गया पता कि 6% की ग्रोथ रेट थी पाकिस्तान की, जो इन्होंने गिरा दी है नीचे। इन्होंने अगले साल का टारगेट 5% की किया है। मतलब आप देखें कि इधर गिरा दिए लोगों ने, तो आप शऊर